Assalamu alaikum and good afternoon. Very warm welcome to this all important cricket match. We promised you yesterday from Shalabuk that today is going to be something special coming your way, and finally we are here. Wait is over. You were waiting with the ravish feasting eyes. Finally we are here at Digital Sports Field of Darmuna, and I got Nazir in the comebacks. Nazir, very vital toss won by Dubai Grand, and their captain decided to bat first. श्रोताओं का हमारे साथ जोड़ने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और ऐसे में शुरुआत इस मुकाबले की, हालांकि दुबई ग्रेड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और प्रारंभिक जोड़ी समय बीच मैदान में नजर आ रही है। वही दोनों अंपायर्स भी आज के इस मुकाबले के अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। खूबसूरत समा, बड़ा मुकाबला, और ऐसे में मैदान की बात करें, बहुत ही खूबसूरत मैदान है। इस अगर मुकाबले को लेकर के बात करें, हालांकि वातावरण काफी गर्म है, तापमान काफी ज्यादा है, तो ऐसे में एक बेहतरीन मुकाबला जो कि फ्रेंड्स वाटर्स नार्बल और दुबई ग्रैंड के विरुद्ध होने जा रहा है। Dubai Grand will be batting first in this all important cricket match, and you can see the two openers arrived at the center, and the two umpires, the officials of the match, are there. Nazir talking of this wetland around the center, and then lush green outfield here in this part of the world. It's mesmerizing, it's gorgeous, and it is something special. And look at that breeze blowing from one end to the other end, and look at the colorful flags waving around the center, and we got a great crowd here at the center. Nice crowd is in because it's time for Friendus Motors Narwhal to lock horns with their opponent side Dubai Grand this time round. And you know that Friendus Motors got all the big names of Valley in the lineup, and Dubai Grand, these are the young talented lads, and now trying to grow through leaps and bounds, trying to make a mark and trying to set standards for themselves, and then trying to attain those standards, and they're out in the middle. देखिए, एक तरफ फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम जहां पे कुछ लोकप्रिय नामी ग्रामी खिलाड़ी आपको मिलेंगे, वही दूसरी ओर अगर दुबई ग्रैंड की बात करें तो उनके पास भी अच्छे खासे युवा क्रिकेटर हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अनुभव और वो जो युवा क्रिकेटर हैं, वो युवा पीढ़ी जो है, उनको एक अनुभवी टीम के साथ वहां जो एक अवसर मिलेगा खेलने का, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए, उनकी टीम के लिए, और कुल मिलाकर श्रोताओं के लिए भी यहाँ से जेके स्पोर्ट्स टाइम और कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से एक बेहतरीन मुकाबला आप तक अवश्य पहुंचेगा। Well, you can see that Waitele and Umar Lefty, then Mujibul Haq joins him, and Faisal Qayyum slowly and steadily walking out to the field on the turf there, and then you can see Nag, and he is joined by Zahoor Zolo. These are the lads, these are the players of Friendus Motors Narwhal, and now Idris walks onto the field, followed by Nasir Kumar, the another terrific opener from South Kashmir, and then Aras Baba, the Speed Express from Sopore area, and then the Jack Lawn from North Kashmir walks out to the center, stroll out to the center, and these are the lads following each other there and slowly approaching the turf. And you can see the two umpires are in readiness, and look at the two openers, they're having words with each other, but we're still waiting for these players to disperse out, and it's going to be roll on, game on, and let's move on with the ball. डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, और यहां अब सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। हालांकि दोनों टीमें मैदान में पहुंच चुके हैं। एक तरफ दुबई ग्रैंड जिन्हें कि आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है, और इन परिस्थिति में देखना होगा किस प्रकार की शुरुआत होगी, क्या रणनीतियां रहेंगी और क्या लक्ष्य रहेगा। क्योंकि दूसरी ओर अगर हम फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की बात करें, सितारों से सजी हुई टीम, उनके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे में क्रिकेट एक स्वाभाविक खेल है, यहाँ अनिश्चितताएं कब घटेंगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इन परिस्थिति में आशा करते हैं क्रिकेट के चाहने वाले समर्थक और सभी श्रोता जो यहाँ पे आए हुए हैं कि एक बेहतरीन और विश्वसनीय मुकाबला दिन के अंत में मिले। Well, exactly. Something special here at the center. They want good contest between bat and ball between two teams. Dubai Grand defeated ACC Zanakut, and most of the players were part of Dubai Grand that few days back, but today getting available here at the center of Darmuna, and it's what a name it has got, and the two openers are in readiness. We'll have to wait and watch who's gonna take strike, and it's
गेंदबाजी अब प्रारंभ होने जा रही है। पहली पारी 20 ओवर का कोटा होगा और फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की ओर से गेंदबाजी का दायित्व इश्तियाक रसूल के पास, नाग के नाम से लोकप्रिय। और प्रारंभ होने जा रही है पहली पारी। दुबई ग्रैंड के प्रारंभिक जोड़ी समय बीच मैदान में फील्डिंग सजाई जा चुकी है और ऐसे में एक बड़े मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना। और ऐसे में प्रारंभ पहली पारी, नाग लेकर के पहली पारी की पहली गेंद दाएं हाथ से, ये गेंद लेग साइड में, हालांकि उसको खेला जरूर उस और कयूम अदरीस कयूम सबब थे, फैसल कयूम शबा की जगह जब तक वे गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर कुछ रन बटोरे। 2 रन शुरुआत पहली पारी की, 2 दुबई ग्रैंड का योग बगैर नुकसान के। Dubai Grand underway with that brace. It was down the leg side, just directed it down toward the spine leg, picked up brace. Faisal Karim does well while chasing the ball. Next one, that's a good delivery. No run there, and score remains static. 2 for none in over number 1. After winning the toss, they're batting first here at Digital Sports Field of Darmuna. Back top side, Nag again. That's huge. That's high and handsome out of the center. संपर्क हुआ है गेंद और बल्ले का, वो मधुर आवाज हमारे कानों तक भी पहुंची। लाजवाब स्ट्रोक था, छक्का नाग के विरुद्ध बिलाल हुसैन द्वारा 8 पर पहुंचे और कुल एक गेंद फिर लेग साइड में, हालांकि उसको खेला जरूर उस और खिलाड़ी है नहीं जब तक वे गेंद को बाउंड्री लाइन से आकर के फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल लिए। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई 9 बगैर नुकसान के पहला ओवर। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के इरादे स्पष्ट किए हैं को मिले, ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रहती वापस खेला, नाग ने खुद फील्ड किया अपने फॉलो थ्रो में बगैर किसी रन नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। Well, it's 9 for none in over number 1. Adil on strike. He's yet to open his account. Here is Nag again. Good delivery. Better line this time. Right behind the ball. Blocks it back to the ball. No run there. It's 9 for none after the completion of over number 1. बिलाल हुसैन और आदिल ने पारी प्रारंभ की है। जहां तक दुबई ग्रैंड की टीम का सवाल है, 9 रन बने और ऐसे में पहला ओवर संभवतः समाप्त हो चुका है, ये देखना होगा। जहां 1 ओवर की समाप्ति के बाद और बिलाल के साथ अगर आदिल की बात करें, आदिल एक अनुभवी खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है। आदिल बॉर्डर के नाम से लोकप्रिय, बेहतरीन शुरुआत देनी होगी, एक लाजवाब शुरुआत देनी होगी, दोनों बल्लेबाजों को ठोस शुरुआत देनी होगी, तब जाकर के यहाँ पे बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। Interesting, and he promoted himself up the order today, I think, and he walked in at number 1, and he's got Bilal Hussain alongside him, and Bilal breaking shackles on that occasion against. Is gonna bowl. On strike will be Bilal Hussain. And mid off, mid on is in place, short fine leg is in place, and square leg inside 30 odd. With this spill, Baba is gonna bowl. ओवेश बाबा पारी का दूसरा ओवर नाग के साथ वो गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम का सवाल है, जेके स्पोर्ट्स टाइम और कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना से पहुंच रहा है। दूसरा ओवर और सामने बिलाल जो कि 9 पे नाबाद है, 4 गेंदों का सामना किया। आदिल को अभी खाता खोलना बाकी है, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया। फिलहाल दुबई ग्रैंड का कुल योग 9 रन। ओवेश बाबा नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, पुल किया उसको ऑन साइड में, उस और खिलाड़ी और गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर। उस और खिलाड़ी जा रहे हैं और खुद ब खुद गेंद की गति को कम होते हुए अब जाकर के खिलाड़ी ने फील्ड 2 रन और ऐसे में दोहरे अंकों में रन संख्या पहुंचती हुई दुबई ग्रैंड की 11 Shot, but the ball quick outfield, but all of a sudden ball lost its speed and it stopped on its own, and it's 11 on the board into the double figures now. One more run added to the tally. You need to reload and re-bowl that one. 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ अतिरिक्त कवर की गेंदबाजी के बाद बाबा को एक सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी। प्रारंभ में अनुशासन दिखाना होगा, गेंदबाजी में सही टिप्पे पे सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी। वही अगर प्रारंभिक जोड़ी की बात करें दुबई ग्रैंड की, तो एक ठोस शुरुआत, एक ठोस आधारशिला की आवश्यकता रहेगी प्रारंभ में। 12 रन बगैर नुकसान के। दूसरा ओवर दूर वाले छोर से गेंदबाजी का दायित्व ओवैस बाबा के पास। बाबा बिलाल हुसैन के लिए जो कि 11 पे नाबाद है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंदरूनी किनारा, मुश्किल बचे, हालांकि वहां पर हल्का सा मिसफील्ड हुआ, थ्रो किया, दिशाहीन थ्रो था, लेकिन
यहाँ थोड़ी सी हाना की स्थिति, हड़बड़ाहट की स्थिति, ऐसे में इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से दोनों बल्लेबाजों को बचना होगा। तालमेल बेहतर तरीके से बनाए रखनी होगी, तब जाकर के आप एक दूसरे को जांच परख कर समझ कर इस पारी को आगे ले जा सकते हैं। 12 बगैर नुकसान के दूसरे ओवर में inside edge and eluding stumps on that occasion. He was nowhere near, he was never in control. Bat and Pat close together of that inner edge, gets away with that when he survives care. Baba continues to bowl, having issues with his left foot over there. He's trying to fix his shoelace and is getting ready to bowl the next one. It's 12 without loss. Adil Hussain is yet to open his account, and Bilal comes in. Oh, look at that one, cranking up. What a delivery again, a nasty one for Bilal and one for the over. And Nazir, it's second occasion and no signal from Skylag umpire regarding that one for the over, and it was again a cranking up delivery, head high. And look at that one, batter on his toes but can't keep that one down. It flies upwards and lets it go through. Little fumble by wicketkeeper Waitele there, but no harm done. It's 13 without loss as Baba comes again. 1.3 ओवर की गेंदबाजी, इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि भारी सिरा लेते हुए ऑफसाइड में गेंद चली गई। नॉन स्ट्राइकिंग शॉट से काफी आगे निकले थे रन लेने के लिए, मना किया वहां पर आदिल ने, वापस भेजा सुरक्षित क्रीज में, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 1.4 ओवर की गेंदबाजी और दुबई ग्रैंड टॉस जीतने के बाद फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध पहली पारी में 13 रन बगैर नुकसान के, ये दूसरा ओवर। और ओवेस बाबा अच्छी खासी गति के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी खासी रफ्तार का प्रयोग कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में देखना होगा किस प्रकार का वो प्रभाव छोड़ पाएंगे बल्लेबाजों पर। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर बल्लेबाज आदिल ने, लेकिन संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर वाहिद अली के दस्ताने में बगैर किसी रन के 13 रन 1.5 के बाद दुबई ग्रैंड। Adil goes down the wicket, goes down the track, wavered. No connection on that occasion. It's a dot ball. I think it's needless from Adil. You need a partnership. You need to build that momentum first and just put premium on the wickets. Take time. You have runs on the board. 13 isn't bad. Yeah, it's a slow start, but you got something on the board. So stick to basics. And here comes the last ball of over number 2. Adil on strike. Waits for Baba, and Baba again followed the batter. And he keeps it away onto the offside, dabs it and picked up a single, quickly scamper through 14 to end the 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। दुबई ग्रैंड ने फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के विरुद्ध 14 रन बना लिए हैं और 11 बिलाल हुसैन ने बनाए हैं, 1 रन आदिल ने बनाया है, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और गेंदबाजी की अगर हम बात करें, 1 ओवर इश्तियाक रसूल ने और 1 ओवर ओवेस बाबा ने। तो अभी प्रारंभ हुआ है यह मुकाबला, पहली पारी चल रही है। धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम और कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से ये सीधा प्रसारण डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना से आप तक पहुंच रहा है और पहली पारी चलती हुई नाग, दूसरा ओवर कोटे का, तीसरा ओवर पारी का पहली गेंद। पर अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद के आने का इंतजार किया और उसको ऑफ साइड में खेल करके वहां पर रन बनने की संभावना को समाप्त किया विकेट कीपर वाहिद अली ने। 14-2.1 के बाद अच्छी शुरुआत, थोड़ा सा समय लेना होगा, लेकिन उसके बाद पावर प्ले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा बल्लेबाजों को। इस बार बड़ा स्ट्रोक सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका छक्का। आदिल के बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का। वे 7 पे पहुंचे और कुल रन संख्या 2.2 के बाद 20 बगैर नुकसान के। on drive and ever long on, 6 more. Nice shot, copybook from Adil Hussain, famously known as Adil Border, and that's a great shot and breaking shacklers again, but this time it's Adil does well. He's on to 7 of 7 ball, run a ball, and Bilal Hussain is on to 11 of 7 balls. These two batters need to put premium on the wicket, stick to basics, and stitch a partnership here as we are in over number 3. We'll have to wait and watch how Ishtiaq sexier, but that's biggest of the lot, and that's X brought to you by Just Bukhara. अपने रंग में आज अपने आप को रंगना होगा आदिल को, तभी जाकर के बात बनेगी। और ये दूसरा छक्का नाग के विरुद्ध इस ओवर में आदिल बॉर्डर द्वारा 13 पे पहुंच गए 8 गेंदों से और दुबई ग्रैंड का स्कोर उछलता कूदता छलांगे मारता 26 तक पहुंच चुका है 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। ये पारी का तीसरा ओवर, नाग पे दबाव जरूर होगा। 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 21 रन उन्होंने खर्चे हैं और ऐसे में अगली गेंद लेकर के
दूर वाले छोर से तैयार, सामने है आदिल जो कि 13 पे नाबाद और बिलाल हुसैन ने 11 रन बनाए हैं। अगली गेंद छोटा सा बॉलिंग रन अप उनकी ये गेंद, और इस बार फिर जगह बनाते हैं ऑन साइड में खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, अदरीस के पास गेंद पहुंची, हालांकि सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर नहीं पाए, वहां दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड तो जरूर किया लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 27 बगैर नुकसान की अच्छी शुरुआत, लेकिन इस शुरुआत को और ज्यादा बेहतर करना होगा। दूसरी ओर एक विकेट की तलाश, अच्छी गेंद थी इस बार, गति परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, उसको वही पास में लौटकाया बगैर किसी रन के। 27 2.5 ओवर की गेंदबाजी, आखिरी गेंद इस ओवर की, और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व इश्तियाक रसूल के पास। 27 without loss. We are in over number 3. लगातार इस समय बल्लेबाजी हो रही है, आदिल और बिलाल हुसैन की जोड़ी समय बीच मैदान में प्रयास करती है। इस बार अच्छी गेंद थी, एक बार फिर खूबसूरत गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सफलता मिली नहीं, ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दुबई ग्रेड 27 बगैर नुकसान के 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से अच्छा कहा जा सकता है। 9 and over, you are absolutely right. This is good, good current rate at the moment, to be precise. Scoring at the rate of 9 and over. They have 27 on the board. Good start now. We can simply use the word after flyer, because they're scoring at the rate of 9 and over. They are 27 without loss, and the first 3 overs completely owned by Dubai Grand. Irrespective of the other day, they were falling like pack of cards, but today looks like a complete set, a compact one. Now they have 27 on the board and putting on a show here again as the likes of Nog like players. You know that Nog is famous across the valley, but he's taken on here. He gone for 22 of his 2 overs. और यहाँ पहला परिवर्तन, उमर लेफ्टी वहां नजर आ रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे, वो पहला ओवर अपने कोटे का, पारी का ये 4था ओवर होगा, और ऐसे में देखना होगा उमर लेफ्टी ये परिवर्तन क्या रंग लाएगा। सामने बिलाल और आदिल की जोड़ी, हालांकि आदिल स्ट्राइक लेने की तैयारी में है, 4था उन्होंने बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। पहला परिवर्तन उमर लेफ्टी, पहली गेंद दाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, बड़ा स्ट्रोक, यहां संयम आत्मविश्वास रखना होगा, और वहीं पे परिवर्तन करके एक विकेट की तलाश में है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम। कुल मिलाकर एक बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला प्रारंभ हो चला है डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारबोना में। Changing the bowling and Umar lefty is operating. First ball, it's a dot ball, score remains as it is, static 27. And the two openers in the middle, Adil is joined by Bilal Hussain, another good delivery, and that one quickly moving outwards, and look at Adil Hussain border telling his partner, look at that one, it just moving outwards, it moved on a good pace, and he leapt alone, shouldering his arms. I think that's good move from batter, letting it go through and having no slip in place. I think it was better to just stab it down to the third man, but he lets it go through. It was away, and this kind of a line, you need to go after that kind of a line, because in a test match you will try to keep yourself away. Oh, look at that one, that's a extra cover, another 6 here, this time again as to Umar Lepti. But what a connection, border is in control here, and he's on cloud 9. Look at that one, sublime touch again, a kind of a tennis blade shot of that of a pat on the ball, and it flies all the way. मनवर हालांकि 33 रनों की नाबाद साझेदारी, पहला विकेट के लिए 21 गेंदों से आदिल बॉर्डर के नाम से लोकप्रिय, और आप समझते हैं बॉर्डर सीमा, और उनकी आज सभी सीमाओं को पार करना होगा, क्योंकि वो जो सीमाएं हैं उनको आज तोड़ना होगा, एक बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी उमर लेफ्टी। अगली गेंद, इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार चकाया वहां पर, समझ नहीं पाए, हालांकि एक सीधी रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारे में बगैर किसी रन के। दुबई ग्रैंड स्कूल 33 बगैर नुकसान के 3.4। पावर प्ले ऑन है, और पावर प्ले में आपको बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी है, विकेट को सुरक्षित रखना है। जितना आप पहला सत्र आसानी विकेट को बचाए हुए निकाल पाएंगे, उतना आपके हित में बेहतर कहा जा सकता है। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली, हालांकि खड़े खड़े वहां फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है आदिल बॉर्डर का, ऐसे में समस्या जरूर उनके साथ। फिलहाल दुबई ग्रैंड 33 3.5 के बाद 4थे ओवर में बगैर नुकसान के। Ball whispering into the ears of wicket there, and having a word literally, and just passed to the a ball is there and gone into the safe hands of wicketkeeper. Here he is again. Oh, what was that? What was that? Called as a wide, banged it in shot, hits the deck hard, and Nazir, it reminds me of South African bowlers who love to hit the deck hard, because that is a different soil with a different texture, and they love to hit it, and ball just cranks up a bit, not a bit, but sometimes it is going head high. Likewise we saw over here, it is head high, and Esteban left alone, called as a wide, and it's one for the over signal from Skelligamper. Here he is again, that one flies in no time, it goes into the point boundary for 4, and that was brought to you by Justin Bukhara. Slapper this time, and spanker it to be precise.
And it races away in a blink of an eye and finds the fence in style. कोई सानी नहीं, क्या खूबसूरत स्ट्रोक। इधर गेंद बल्ले से टकराई, उधर सीमा पार चली गई, चौका मिला जस बोकारा। अरे यहाँ देखिए 24 पे पहुंच चुके हैं 15 गेंदों से आदिल बॉर्डर। हालांकि इस पारी को और ज्यादा लंबा खींचना होगा, एक बेहतरीन पारी में परिवर्तित करना होगा। वहीं पे बिलाल की बात करें, बिलाल इस समय 11 पे नाबाद है, 9 गेंदों से दुबई ग्रैंड 38-4 के बाद बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। और वही फ्रेंड्स मोटर नार्बल की टीम थोड़ी सी चिंतित जरूर होगी, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में एक विकेट की तलाश में है, और अगर यहां से आने वाले 2-3 ओवर में विकेट नहीं मिलता तो निश्चित तौर पे एक बड़े स्कोर तक अग्रसर हो सकती है दुबई ग्रैंड की टीम। You're absolutely right. They're up to fly. They're 38 after 4 overs on the board. Now, Friendus Motors need an opening here badly. They're in desperate need of a breakthrough here. Oh, beautifully bowled. Mungat Verdes and Wani Munawar writes in commentators 6 and 4. And it is a 38 without loss. So we are in over number 5. Well, Nazir, that was a good delivery. Quality one. Mungat Verdes at a genuine pace, as our brother mentioned earlier on. If you hit the deck hard, no one is going to play you. But we saw this lad, Adil Border, breaking shackles and crossing the borders with a gentle and some copybook stylish proper cricketing strokes on either side. अगली गेंद ओवेस बाबा की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 11 पे नाबाद बिलाल सामना करने के लिए तैयार। कुल रन संख्या 38, 4.1 के बाद ये गेंद इस बार फिर पटकने का प्रयास। अच्छी खासी उछाल मिलती हुई वहां पर ओवेस बाबा को, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। और बिलाल लगातार कुछ अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं, कुछ विस्फोटक अंदाज अपनाना चाहते हैं। अब जाकर के वहां आदिल उनके पास पहुंचे, कुछ बातचीत की, कुछ मंत्रा की। थोड़ा सा संयम रखिए, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कीजिए। 38 बगैर नुकसान के। Well, 38 on the board, over number 5 here in Bilal. All very well that he's a senior colleague and customer. He's a seasoned campaigner and he knows he has to step up to the occasion. He's doing that today. Babagan. Bang it in and it bangs it away. Has that gone all the way? I think one bounce into the forward square fence for 4, and that was brought to you by Just Bukhara. चौका जरूर मिला बिलाल के बल्ले से निकलने वाला ये स्ट्रोक। वे 15 पे पहुंचे 12 गेंदों से और कुल रन संख्या 42 तक पहुंच चुके हैं। 5वें ओवर में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। To be precise, it was deep mid wicket area and it's quite difficult from this angle. And have you gone through different angles? We're doing it from this very angle, which is quite difficult to tell you. We're doing a different screen available and different slide is available. एक एंगल से यदि आप जो है ये सीधा प्रसारण आप अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इस एंगल से सभी फील्ड पोजीशन को यहाँ से परखना, यहाँ से जांचना। लेकिन ऐसे में हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आप तक बेहतर से बेहतर प्रसारण पहुंचे। फिलहाल दुबई ग्रैंड 42, 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद ओवेस बाबा 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 8 रन मात्र खर्चे हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक उन्होंने की है और नपिथुली अनुशासन उनकी गेंदबाजी में दिखाई दिया है। एक साधारण और सपाट लाइन और लेंथ के साथ उन्होंने गेंदबाजी की है। फिलहाल उनके सामने है बिलाल जो कि 15 पे नाबाद 12 गेंदों से 42, कुल रन संख्या 4.3 के बाद अगली गेंद और इस बार लेग साइड में उसको निकाला। यहाँ चौका मिलेगा, हालांकि खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं। जब तक वे पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका और इस चौके के साथ रन संख्या 46, 4.4 के बाद। Good power play here for batting side, winning the toss, electing to bat. They're 42 without loss. We're in over number 5, flicks around the corner and it beats the man Idris inside 30 odd and ball races away. It's sped past top the turf. It's 46 on the board. We're in over number 5, winning the toss or batting first here at Digital Sports Field. Next one, it's a no ball. Goes for the pull, leading his lobes up. Oh, look at that one, ball playing hide and seek with the field. And look at the roar from the crowd. It's a no ball, 5 of it. And that was brought to you by Just Bukhara. 50 comes up, it's 51. You need to reload and re-bowl that one. कि आपके पास न सिर्फ एक अतिरिक्त गेंद बल्कि आपके पास लाइसेंस है कि आप इस गेंद पे कड़े प्रहार करके कुछ बड़े रन, कुछ बड़ा स्ट्रोक खेल करके अपनी टीम के लिए कुछ बड़े रन जोड़ सकते हैं। फिलहाल 50 पूरे होते हुए 15 गेंदों से 24 बनाए आदिल ने और वहीं पे बिलाल हुसैन ने 23, 14 गेंदों से कुल रन संख्या 51, 4.4 के बाद। और अब जाकर के फ्री हिट होगी। ओवेस बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं, 17 खर्चे 1.4 ओवर में, विकेट उन्हें मिला नहीं। अगली गेंद बिलाल सामने और इस बार ये गति परिवर्तन क्या था, चतुराई भरी गेंदबाजी वहां समझ नहीं पाए, थोड़ा जल्दी खेले, गेंद उनके ग्लव से टकराई, पीछे विकेट कीपर के पास चले गई बगैर किसी रन के। डॉट के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा, लाभ लिया नहीं फ्री हिट का। 4.5 के बाद 51 बगैर नुकसान के दुबई ग्रैंड। 51 on the board. This is just over number 5 and now they're scoring more than 10 and over.
It is 10.55 and over. And we'll have to wait and watch how Wes Baba is going to keep that batter under check on this very delivery. Let's find it out. This is going to be the final ball of over number 5. Power play is on. Next ball. And does well. Keeps it away. Looking for Yorker there. Yorks him. But he was right behind that one. He lays bat onto it. Keeps it away. We're done with the 5th one. 5 gone. 51 without loss. What a start. And what a partnership, what a stand showed by these two lads. And credit goes to Bilal and Adil. And I think Adil does well today. Done well, to be precise. Promoted himself up the order. Last time he missed out and he walked in at number 8 or number 9. देखिए अनुभवी बल्लेबाज है उनके पास अनुभव इतना ज्यादा वो क्रिकेट खेल चुके हैं तो ऐसे में अनुभव की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है और अगर कमी है तो वो यहाँ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, आत्मविश्वास दिखाना होगा और अगर आप आत्मविश्वास के साथ, संयम के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो मैं समझता हूं एक बेहतरीन शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं आदिल और उनके साथ बिलाल। फिलहाल दुबई ग्रैंड टॉस जीतने के बाद अच्छी शुरुआत, अच्छा निर्णय, 51 रन बने 5 ओवर में 10 से अधिकतम का इस समय जो है वर्तमान रन गति है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जिसकी क्या आवश्यकता थी और अब जाकर के मध्य क्रम में जो आपकी बल्लेबाजी है, जो युवा क्रिकेटर है उन पे किसी किस्म का दबाव नहीं होगा, लेकिन यहां से चाहेंगे आदिल और बिलाल ये साझेदारी और आगे बढ़े। इस साझेदारी के चलते अगर आप 30-40 रन और जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हित में, आपके दृष्टिकोण से बेहतर कहा जा सकता है। वही फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के खिलाड़ी, उनकी टीम के कप्तान चाहेंगे कि यहां एक विकेट मिले, इस साझेदारी को ऐसे तैसे करके तोड़ा जाए, एक दबाव बनाया जाए बल्लेबाजों पर। डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना जहां से ये सीधा प्रसारण जी के स्पोर्ट्स टाइम और साथ में कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ कश्मीर स्पोर्ट्स के कमेंटेटर ओवैस जिलानी भी मौजूद हैं और वो भी लगातार यहां पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में बने हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल रन संख्या इस समय 51-5 के बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर और उमर लेफ्टी गेंदबाजी का दायित्व निभाते हुए। Lefty will continue his operation with the ball from far and as far as the count box is concerned, it's 51 without loss. What a start, prolific one, brilliant start. And look at the opening stand. Foundation is laid, knocked him over. First ball and he castled him, cleaned him up, clean bowled. This is the wicket they were looking for and it is Adil. Is it Adil? Yes, Adil Ahmed is walking back and he's gone on 24. And Umar Lefty has the final say and he has the last laugh as Adil departs. Adil is walking back to pavilion and Dubai Grand 51 for 1 wicket after ages for Umar and company. 51 पे विकेट की हम बातचीत कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में कि एक विकेट की तलाश में अंततः उमर लेफ्टी ने वो विकेट दिलाया। एक अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अंततः उनका ये दूसरा ओवर था और दूसरे ओवर में 1.1 के बाद 11 रन उन्होंने खर्चे अपने दूसरे ओवर के पहली गेंद पर सफलता और एक बहुत बड़ी विकेट आदिल बॉर्डर को चलता किया और आउट होने से पूर्व 24 रनों का योगदान दिया। रिजवान सोफी नए बल्लेबाज, 21 मैचेस 19 इनिंग्स 527 रन, 81 उनका सर्वाधिक, 27 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट, 4 अर्धशतक और कोई भी शतक उनके नाम नहीं। हालांकि उतना ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन यहां परिस्थिति के अनुकूल उनके पास एक बेहतरीन अवसर है, पर्याप्त अवसर है उनके पास, पर्याप्त समय है कि यहां से वो अपने आप को स्थापित करें। इस टीम में चयन हुआ है, उस चयनकर्ताओं के उस निर्णय को वो यहां पे पक्का करें, अपना स्थान पक्का करें। तो ऐसे में उनके पास अवसर है एक बेहतरीन पारी खेलने का। फिलहाल रिजवान सोफी को खाता खोलना, बिलाल 23 पे, कुल रन संख्या 51, एक विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Well, first blood is drawn. They were looking for a wicket here and it is Umar Lefty finally provided them with a much needed one because it was onslaught hitting going on and they were going after the bowlers and they gone berserk. 51 for 1 now in a hurdle, now dispersing out again. Frondus Motors Narabal. And talking of this club, got big names of the valley. Nog is there, Postbow Valley Cricket is there. And then they got the likes of Baba, Faisal Qayyum, Waitele, stylish, proper cricketing batter and a proper wicket-keeper batter from South Kashmir. He's a quality lad when it comes to the stroke play, when it comes to the copybook, stylish, proper cricketing strokes. And Waitele is one of them. Then talking of Nog, you know, and Umar Lefty is also a game changer, he's a match winner player. Well, I can understand that you are talking of bright sunshine and that heating effect. And Nazir, you can't control that. It is the physics. It is something natural and something which is linked to the nature. And it's 51 for 1 after 5.1. Over number 6 we're in. As Umar continues to bowl. New man walks in at number 3. Down the leg side. Gentle tickle on to that one. Idris does well. Covered the ground and stops the ball, but not before the two batters scamper through. One more run added. Now these two batters need to put on a show, get together, stitch a partnership,
Still long way to go. This is just server number 6 wherein someone talking of heat wave, which is going on nowadays. And he's talking of heat wave. Well, it's 52 for 1 wherein number 6 as Umar continues to bowl. 1.21 for 11. Bilal on strike again. 23 of 16 balls. And Bilal swings and misses the liner ball completely. It bounced over his horizontal blade into the safe hands of Waithele, who's standing way back. There is Faisal Qayyum at first slip. Then there is backward a point. As we watch once again, Umar lefty comes in. It's a wayward shot. It's better to stick to basics. It right behind the line of the ball and just dab it away and scamper through. 52 विकेट के नुकसान पर विकेट मिलने के बाद दबाव इसमें बल्लेबाजों पर, हालांकि बिलाल हुसैन 23-18 गेंदों का सामना किया। रिजवान सोफी जो कि नए बल्लेबाज आए थे वो अभी खाता नहीं खोल पाए, नॉन स्ट्राइक शॉट पे खड़े हैं और उमर लेफ्टी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार फिर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति, बड़ा स्ट्रोक ऑफर किया, संपर्क हुआ नहीं, गेंद की पेच तक पहुंचे नहीं, गेंद छकाते हुए बल्लेबाज को सीधे विकेट कीपर वाहिद के दस्ताने में बगैर किसी रन के। संयम, आत्मविश्वास यहां दिखाना होगा बल्लेबाजों को, विकेट को परखना होगा क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास पर्याप्त समय है। या एक साझेदारी की आवश्यकता, बड़े स्ट्रोक्स आने रहे हैं, ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी टीम के लिए और रोटेशन काफी महत्वपूर्ण रहेगा इन दो बल्लेबाजों के लिए। I think we should believe in single game in every format, and there is a shot. There is a shot, and umpire says we're done with over number 6 here, and Umar is surprised. He's looking at strike umpire. And talking of all wickets, the only one to go. Score was 51, extras were 5, and 6 overs done and dusted. This over, nice over from Umar, and I think just a single of it, or nothing of it, just a single of this over, and we're done with power play. A power play is over. Now captain can design and manipulate the field outside 30 yard. First 6 overs completely owned by Dubai Grand, to be precise. In a cricketing sense, you will definitely say they have runs on the board. They are everything there. Now just need a partnership of 60-70 runs to make it one big score here, and to put pressure and transfer that pressure back onto the bowling side, the bowling unit. And at this very crucial juncture, they need a partnership. On the other side, bowlers need to hit the right areas, right lines and lengths. Now begins the fresh over. Flicks it away. Wanted second. Can't get that. And look at the speed of the ball. It died on its own. And the speed of the ball is dying when it comes to the outfield. I can't understand what's happening. I think there are some areas, some rough patches. Next one works it away onto the onside. Another single. You got to believe in singles. Just manure gaps, place the ball, nudge the ball, clip the ball and scamper through. Keep that scoreboard ticking. देखिए सही आपने यहाँ शब्द का प्रयोग किया क्योंकि आपके पास अब जो है फील्ड रिस्ट्रिक्शन है वो हालांकि बाउंड्रीज पे अब तैनात किया गया खिलाड़ियों को। वो जो लंबे गैप है, जो बड़े गैप है ऑन साइड की अगर हम बात करें, वहाँ पे आप बेहतर तरीके से एक रन से पारी को आगे चला सकते हैं, एक रन को 2 में परिवर्तित करके इस पारी को आगे चला सकते हैं। फिलहाल नाग अगली गेंद लेकर के इस बार फिर पंजों के बल चलते हुए बैक जाकर उसको ऑफसाइड में दिशा दे दी, थ्रो किया, वहां पर सीधा स्टंप्स पे पड़ता तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रन तो पूरा कर लिया, 1 रन और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 54 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद पारी का 7वां ओवर 24 पे बिलाल सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड में वहां पर खिलाड़ी तैनात है और कैच सीधा थमा दिया समवते मुजीबुल हक को। एक और विकेट का पतन होता हुआ। बिलाल बहुत बढ़िया खेल रहे थे, एकाग्रता भंग हुई, बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे। दुबई ग्रैंड 55 पे दूसरा विकेट गवा दिया है। This is what happens when you chew the ball like chewing gum, when you're chewing like chewing gum and using too many dot deliveries and unable to rotate strike. This is going to happen, and that's why people use words, wicket is loading, wicket is coming, and this can happen. Simply the effect of dot deliveries, and he decided to heave that one and gets the elevation on the distance, not the desired distance. It lands into the safe hands. मनवर मैं कहूँगा रनों की धीमी गति से तंग आकर बड़ा स्ट्रोक खेला और सीधे वहां पर मुजीबुल हक द्वारा पकड़े गए। तो एक और विकेट आदिल बॉर्डर और बिलाल जिन्होंने आज पारी प्रारंभ की थी, दोनों बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। रिजवान सोफी 2 पे नाबाद हैं और नए बल्लेबाज अब मैदान पर दुबई ग्रैंड द्वारा 55 विकेट के नुकसान पर ज़हूर ज़ोलो, अदरीस डार, फैसल कयूम, जहांगीर लोन, इशनाक, नासिर कुमार, वाहिद तेले। अगर टीम की बात करें और
और उसके अलावा आजिम राथर भी नजर आ रहे हैं। और आजिम राथर के अलावा उवैस बाबा, एक बहुत ही बेहतरीन सितारों से सजी हुई टीम फ्रेंड्स वोटर्स नागपल की 55 पे 2 और मुबारक नए बल्लेबाज आए हैं। मुबारक और रिजवान सोफी की जोड़ी समावेश मैदान में और एक बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, बेहतरीन शुरुआत देनी होगी, तब जाकर के आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नाग को एक सफलता मिलती हुई, ये गेंद 10-12 ऑफ स्टंप पर आती है, गेंद खड़े खड़े, हालांकि स्ट्रोक खेला ऑफ साइड में, वहां खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। एक रन और खाते में जुड़ा, यहां खाता खोला मुबारक ने, वो 1 पर पहुंचे, रिजवान सोफी 2, कुल रन संख्या दुबई ग्रेंड की 56 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर पूरे हो चुके हैं। 7 done. Nag 3 was 1 for 26. Umal Afti 2 was 1 for 11 and Uwais Baba 2 was none for 17. And we just gone through that bowling column, the bowlers column, and we saw runs. Everyone leaked runs, and this is the positive sign for batting team. But now they're 2 down, reduced to 56 for 2 after 7 overs. That second wicket falling, and both openers now back to hut, back to pavilion. It's down to Rizwan, Sofi and Mubarak, the 2 new lads. It's a different duo in the middle. Let us see how these 2 batters will adjust themselves, how they will apply, and what is in store for all of us. Let's find it out in a while from now. We'd like to thank our sponsors, Anthem Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pampur, MHM Multi-Brander of Ivani Green Lines, Cricket Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters. And we got H&D Complete Kits Wear in Natipura. Srinagar coming back to the game. Azim begins the fresh ever. Spin into the attack. First ball. Could be tight. Could be tight. Oh, look at that one. He hurls that one with tremendous sense of urgency. Hits him on the left shoulder. He is in deep pan there. He is in deep pan. He's screaming at the moment. It reminds me of Andrew Neil. Sanders in a shy. And it was Raul Dravid. That time round, it hits him on his back, and Dravid was struggling. And once upon a time, in a T20 World Cup back in 2009, Lew Vincent was pulling inside 30 and Southey, or I think Southey, released the ball from long off, and it was feeling at mid off inside 30 yard. It hits on his head, and Lew Vincent all of a sudden falls down to the ground, and everyone assembled around Lew Vincent, looking after the lad and asking what happened. And he says it was a kind of bowl from Billy, and he was down on the field. Likewise, next one goes for the sweep. Connectors in the gap, runs 4 of them. Quality sweep shot there from Rizwan Sofi, and goes for it and does well, puts it away. That just because of 4 takes it to 61. Quality shot from Sofi there, and that's a good shot there. Great presence of mind. He's on to 6 of 5 balls. It is 61 in over number 8. Look at the bright sunshine here, and lush green outfield around the sun and the wetland area here. And around this very sports field, we have thousands of acres around the center of wetland. It's being cornered, it's being surrounded by wetland, but that breeze in between makes it something special here. Outside edge doesn't carry to wicket keeper or the fly stealer fielder. 1 more run added. Nasir does well, cuts it up. Nasir Kumar, he's filling in the slip cordon area. There is Silip Gully and backward, a point behind square and offside. Then there is Tritish point. There is Faisal Qayyum, son of owner. Good delivery, stretch forward. He stretched out to the ball, and this is how you can keep it away. But there was one thing lacking. He can't transfer the body weight, and he can't get right behind that one. Yeah, he stretch out, then bat away from the body. That isn't good. It was better to make the ball come in and then play. Next one cut away nicely in the gap. Philly gives the chase. Will he get to the ball? No, doesn't. Ball wins the race. Another 4 here. That was brought to you by Just Bukhara, and this time Mubarak with that Mubarak shot. Through backward a point, earn him a boundary. It is 66 for 2 after 7.5. 7.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 66 बने, 2 विकेट खोए। दुबई ग्रैंड की टीम ने। मुबारक 6 पर पहुंच चुके हैं। हालांकि आदिल बॉर्डर और उनके साथी खिलाड़ी बिलाल हुसैन आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। बाएं हाथ की ये गेंद और इस बाहर परिवर्तन है। एक और गेंदबाज का चयन है और ओवर समाप्त हुआ आसिफ राथिर का। तो इस प्रकार से यहां 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 66 2 विकेट के नुकसान पर मुबारक 6 5 गेंद से। रिजवान सोफी ने 7 बनाए हैं। तेज दरार धूप और ऐसे में तापमान करीब 34-35 डिग्री के आसपास, और इस कड़कती धूप के अंदर, इस तापमान के अंदर क्रिकेट का बेहतरीन मुकाबला डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना सोईबुक का ये इलाका और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का ये क्षेत्र जहां पे ये मुकाबला
ये पारी का 9वां ओवर होगा। नाग इस ओवर की पहली गेंद और पारी का ये 4था ओवर उनके कोटे का, और कुल मिलाकर दुबई ग्रैंड के लिए पारी का 9वां ओवर। पहली गेंद नाग के लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को खेला जरूर अदरीस डार के पास, हम साइड में गेंद चली गई, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, 1 रन जरूर मिला और 1 रन के साथ ही रन संख्या में इजाफा होता हुआ 67 2 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Over number 9 begins with a single, a solitary run. Look at Ishnak, 3.1, 1 for 27. He's in his 4th over here. He's going to finish his quota here. He's one final time in his spell here. That one wraps him on the pad. Shot for LBW, turned down by umpire. I think it hits him outside the line of off there, and that saved the batter. Otherwise there was nothing between bat and the ball. There was a big daylight. Oh, in her edge, and ball eludes the stumps on that occasion. Interesting, but fortune favors the brave. He gets away with that one. Mubarak was trying to unleash, and he was trying to go after. He was trying to launch him, but unable to do so. It's 68 for 2 in over number 9. Now again, good delivery. Better line. Provokes the batter. Go back and get behind that one. He gets right behind it and middled it back to the ball. Another dot ball. These are the precious dot deliveries. And a little uppish. We will get a single for this one to end the over number 9. It is 69 for 2 after 9 overs. He will keep the strike for the next over. 11 ओवर का खेल बचा है, 68 बने, 2 विकेट खोए, 9 ओवर पूरे हो चुके हैं और रिजवान सोफी के साथ साथ दूसरे खिलाड़ी मुबारक जो इस समय बीच मैदान में बने हुए हैं एक साझेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। 7 पे मुबारक, रिजवान सोफी 9 पे 9 गेंदों से, और दुबई ग्रैंड टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते इस मुकाबले में अब तक 68 पे पहुंच चुका है। 11 ओवर का खेल, 20 ओवर की पारी। प्रोजेक्टिव स्कोर की बात करें 153 क्रिकेट, बहाना चिंताओं का खेल, लेकिन एक संघर्ष था इस मुकाबले में बनी रहेगी यदि आप एक सम्मानजनक 150-160 के आसपास पहुंच पाते हैं, क्योंकि दूसरी पारी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की बात करें, उनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है, नंबर 10 तक उनके पास बल्लेबाजी है, जहां नाग, नासिर कुमार, जहांगीर लोन, वाहिद तेली, उसके अलावा मुजीबुल हक और उनके साथ साथ आजिम राथर, जहांगीर लोन, उमर लेफ्टी, ओवैस बाबा और अदरीस भी उनकी बल्लेबाजी में है। तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि बल्लेबाजी में उनके पास अच्छा खासा दमखम है। तो ऐसे में 150-160 का अवश्य लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि इस विकेट में अभी तक हमने देखा बल्लेबाजी बहुत बेहतर तरीके से हुई है, लेकिन शुरुआत में एक ठोस शुरुआत, एक बेहतरीन साझेदारी 51 रनों की, उसके बाद लगातार अंतराल के बाद 2 विकेट मिले, 69 रन संख्या, और कुल मिलाकर इस समय 9 ओवर पूरे हो चुके हैं। 10वें ओवर की शुरुआत, एक और परिवर्तन अदरीस को लेकर के आए हैं। 5वें गेंदबाज का चयन फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की ओर से। अदरीस अब गेंदबाजी करेंगे, क्या ये परिवर्तन रंग लाएगा? एक विकेट की तलाश में होंगे, एक साझेदारी को तोड़ने की तलाश में होंगे। पहली गेंद इस बार, well, the next one looks to scoop it. Up goes the finger wicket, number 3 goes down. Mubarak departs. Ooh, I caught him, but he's gone on that occasion. Got overcautious and is kept behind wickets. And stumps as well, takes that catch, and it is 77. Charges down the wicket. Long gone. Well, dear beloved listeners, and 1 for 3. 77 3 विकेट के नुकसान पर 9.5 ओवर की गेंदबाजी। अरे इन परिस्थिति में देखना होगा यहां से फ्रेंड्स मोटर नार्बल के पास हमने कहा कि बल्लेबाजी पहुंचने के लिए आपको बेहतरीन साझेदारियां निभानी होगी। छोटी छोटी साझेदारियां काफी महत्वपूर्ण रहती हैं किसी भी टीम के, निभाएंगे उतना आपके हित में, आपकी टीम के हित में बेहतर कहा जा सकता है। 77 पे 3 बाकी संभवते, और ऐसे में देखना होगा इन पर करवट लेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम और कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से। हालांकि मुबारक कोई बड़ी पारी तो खेल नहीं पाए, एक छोटा सा योगदान दिया और 30वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर जा रहे हैं। 7 और ऐसे में दुबई ग्रैंड 77 Over number 10 in progress. New man walks in, replaces Mubarak, who was caught. This is Digital Sports Field here in Darmuna.
of Budgam district. And this breeze is what we need from ball 1 till the very last time. Really inspiring, and it and you call that Jeevan in Hindi? Is all of us. It's a blissful 77 for 3 after 9.5 balls. Players needed a breather, getting that because of everyone is sweating around the sun. It is sweltering, it is scorching heat here at this, unbearable. तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब 34 से इस कड़कती धूप में ये जो तापमान है, काफी ज्यादा तापमान है। आए हुए दर्शक हो, कमेंट्री टीम हो, खिलाड़ी हो, जितने भी, और ये इम्पैक्ट है इस हीट का, इस इतनी कड़कती धूप का, इस गर्मी का, जिसके सभी व्यक्ति फिलहाल इस समय 77 3 विकेट के नुकसान पर, और अब जाकर के नए बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। देखना होगा यहां से इस साझेदारी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि नेटवर्क इसको बेहतर से बेहतर किया जाए और बेहतर से बेहतर प्रसारण आप तक पहुंचाया जाए। Interesting from Nazir that we're still working. 77 for the loss of 3. We are in over number 10. And talking of Shaheen, a complete sport center and a store. Well, coming back to this game, and isn't in our control. We're trying our level best. Still, we're working on it. Believe me, and to be fair on it. 7 for 3. We're in over number 10. As we watch Idris again. Bowling here. अदरीस अब जाकर के गेंदबाजी करेंगे। फैसल रशीद जो है सामने है नए बल्लेबाज, और इस समय 77। अगली गेंद अदरीस की, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को। ओवर समाप्त हुआ, 10 ओवर पूरे, 77 3 विकेट के नुकसान पर, और ऐसे में फैसल को खाता खोलना बाकी है। रिजवान ने 10 बनाए हैं। 3 बल्लेबाज, 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। फिलहाल 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला, लेकिन इन परिस्थितियों में एक बेहतरीन शुरुआत, एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता। तेज धूप, और वहीं पे अगर बल्लेबाजों की बात करें, 3 विकेट जरूर खोए, एक साझेदारी का प्रयास। अभी नए बल्लेबाज फैसल रशीद निभानी हो गई। 10 के बाद 77 3 विकेट के नुकसान पर, और इन परिस्थितियों में 11वें ओवर की शुरुआत, संभवतः अभ्यास चल रहा है। जहांगीर लोन को लेकर के आए गेंदबाजी में, एक और परिवर्तन, छठे गेंदबाज का प्रयोग, एक विकेट की तलाश, और जहांगीर लोन करेंगे। ये उनका पहला ओवर का छोटा सा बॉलिंग रन, पहली गेंद, और इस बार बाहरी किनारा लेती हुई गेंद। दूसरे खिलाड़ी तैनात है, उनने गेंद को फील्ड तो कर लिया, जब तक वहां फील्ड करके थ्रो करते संभवतः रन लेने का प्रयास वहां पे किया नहीं बल्लेबाजों ने, और ऐसे 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद, और इस बार कौन साइड में खेला, लेकिन मिड विकेट शेड से जब तक मुजीबुल हक आकर के गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, मना किया वहां पर साथी खिलाड़ी ने, और 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई 78 तक पहुंच चुकी है। 3 विकेट के नुकसान पर विकेट खोए दुबई ग्रैंड ने। जहांगीर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद, उस और खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या कैच होगा? जी नहीं, 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरती हुई, और निश्चित तौर पे मुजीबुल हक और इस बाबा ने प्रयास तो किया था, अंततः गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में जमीन से जा टकराई। यहाँ रन जरूर मिले, और इन रनों के साथ ही रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ 3 विकेट के नुकसान पे 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद जहांगीर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं, और सामने फैसल रशीद के लिए गेंद इस बार बैक पर जाकर के वापस खेला, मिडिल ऑफ द बैट से बैट और पैड मिलाकर वापस जहांगीर लोन की दिशा में बगैर किसी रन के। 80 for 3 in over number 11. Here it's great connection, solid one, and over deep mid wicket for 6. Quality shot this time, goes across the line and connectors. He's picked bounds out of it and belted it onto the bank for 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara. Quality hit
Wonderful hit. When he hits, it stays a hit. 86 3 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लोन के विरुद्ध बड़ा स्ट्रोक, 6 रन अर्जित किए, 9 रन उन्हें खर्चे हैं अंतिम। इस बार खिलाड़ी आ रहे हैं उस ओर, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका आता हुआ ओवर समाप्त 11 के बाद 90 3 विकेट के नुकसान पे। 90 of 11 overs that were brought to you by Just Bukhara. Not a good piece of field. The fielder a backward of scare, just few yards of what was going on. I'm not kidding you, buddy. This is a serious concern. A man there, stationed there, for what he is there. I can't understand. That was very much in position there. It was very much in play, to be precise. देखिए वो जो खिलाड़ी वहां पे तैनात थे उन्होंने जी उस छोर से काफी लंबा सफर तय करके आए, लेकिन जब तक वे पहुंचते गेंद तक तब तक गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल चुकी थी। चौका मिला पिछली गेंद पर, जहांगीर लोन ने पहले ओवर में 13 रन खर्चे, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को नहीं मिली और ऐसे में 11 के बाद 90 3 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर की शुरुआत। और अदरीस एक बार फिर ये उनका दूसरा ओवर होगा। अदरीस ने इससे पूर्व एक ओवर में 8 रन खर्चे, 1 विकेट। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी, किफायतीपन उनकी गेंदबाजी में दिखाई दिया है। विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया अपनी टीम। और इस बार अदरीस ये गेंद बाहरी किनारा लेती हुई गेंद और आजिम राता थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और फील्ड करने के साथ ही अंडर आर्म थ्रो सीधे वहां विकेट कीपर की ओर, हालांकि रन बनने की संभावना को तो समाप्त किया। फिलहाल रन संख्या इसमें टिकी हुई 90 3 विकेट के नुकसान पे 11.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 90 for 3. We are in over number 12. You know that network is in our capacity. We're trying our level best. 90 for 3. Over number 12. As Idris continues to bowl, Rizwan Sophie on strike down the leg side. Trouser on way to wicketkeeper, and that just took the pace off the ball, and it was easy for wicketkeeper to come in and stop it. It's 90 for 3 in over number 12. And talking of that heat wave and the heating effect of sunlight, or the sun's light, is quite visible here. We're sweating, so the players and the audience is around the center. 90, and it's an afternoon game as we watch Idris again. 1.21 fade, economic Idris so far. Comes into ball Rizwan, and Rizwan goes right behind on his toes and plays it onto the offside. Wanted second, can't get that. And Faisal Qayyum sends us in a good shade and keeps it down to 1. 91 for 3 in over number 12. Well, Nazir, I'm still wondering what happened on that occasion when fielder was there at backward of scare. He was very much in play, but he decided to leave that one. That doesn't make any sense. देखिए वहां प्रयास उन्होंने किया नहीं, लेकिन यहाँ प्रयास बल्लेबाज का लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट बुखारा छक्का। And it's a huge 6-over long on, solid connection again, and he variated the pace. But look at this batter, his eyes lit up. He saw the hop tracker and he goes after it and packs it to perfection over long on. Just Bukhara 6, 97 for 3. But today they are playing some wonderful cricket, some copybook stylish, and this is gutsy approach from these lads. They are 97 on the board in just 12th over of the game, with 7 of the batters in kitty. Guided again, find his fielder in place, only a single accrued there, takes it to 98 for 3. 1 ball remaining in over number 12, but runs coming thick and fast. This is the beauty of partnership. 11.5 ओवर की गेंदबाजी, 98 रन बने, 3 विकेट खोए और ऐसे में अंतिम गेंद लेकर के तैयार सामने वाले छोर से अदरीस, जिन्होंने 1.5 ओवर में 16 रन खर्चे हैं, 1 विकेट उन्हें मिला है। अगली गेंद अदरीस की, इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बल चलते हुए ऑन द राइज ऑफ साइड में खेला, 1 रन तोड़ करके पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन से संतुष्ट, ओवर समाप्त हुआ। 99 सबब थे, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 8 ओवर का खेल बचा है, 48 निर्धारित गेंदें, लेकिन आपके पास विकेट 7 सुरक्षित हैं। यहां से आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक बेहतरीन साझेदारी की आवश्यकता। पहला 51 पे, दूसरा विकेट 55 पे, तीसरा 77 पे, 12 पूरे 6 अतिरिक्त के साथ 99 बने 12 ओवर के बाद। और ऐसे में अब जाकर के 8 ओवर का खेल बचा है।
अरे इन परिस्थिति में देखना होगा 8 ओवर में आप यहां से कितने रन बटोर लेंगे, क्योंकि बड़ा दिलचस्प एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और 13वें ओवर में दुबई ग्रैंड की टीम। Well, thumbs up. It's down to Faisal now. 19 of 7 balls, and Rizwan is on to 14. Away. There is a field. There is a man. He's in play, but he parried it to the fan. 6 more. Level best wasn't easy because he's a divergent size fielder there. देखिए गेंद उनके हाथ से टकराने के बाद सीमा पार चली गई। ये जस्ट बोखाना छक्का 106 3 विकेट। स्ट्रोक पीछे जहांगीर लॉन थ्रो किया, रन पूरा कर लिया, पलट कर दूसरे रन के लिए तेजी के साथ दोनों और खाते में जुड़े और 2 रनों के साथ दुबई ग्रैंड का कुल योग पहले बल्लेबाजी 108 3 विकेट के वाले 2-3 ओवर में और ज्यादा लंबा खींचना होगा और अंतिम ओवर में कुछ विस्फोटक अंदाज अपनाना होगा। आप 160 170 तक किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी इस बार। फिर टॉप एज, हालांकि पीछे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, रन मिला नहीं। 19 1.4 के बाद उन्होंने 19 रन खर्चे हैं 12.4 में, लेकिन खेला स्ट्रोक ऑन साइड में। एक बार फिर मुजीब के पास गेंद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, थ्रो किया विकेट कीपर के पास, यहां इस प्रकार से यहां विकेट दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, आवश्यकता नहीं थी दूसरे रन के, लेकिन चौथा विकेट गंवा दिया 108। Needless from bat to there. Sudden rush. Scamper through for the second one, which wasn't available. And in that process, he's run out to the pavilion, and Newman walks in to join Faisal Rashid in the middle, who's on to 27. And a timely breakthrough for Prandis Motors. They needed that because this lad, he was and this partnership. 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन साझेदारी चल रही थी। जीब ने कार्य किया, थ्रो किया, विकेट कीपर ने स्टंप्स भी खेले, वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विकेट मिला। फिलहाल चौथा विकेट, नए बल्लेबाज अब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए। फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम की अगर हम बात करें, यहां वापसी जरूर हुई है, 4 विकेट 5 ओवर में 20 रन खर्चे हैं और कुल मिलाकर दुबई ग्रैंड का 109 रन। करंट रन रेट की बात करें तो 8.49। 14 पे नाबाद रिजवान सोफी हैं और देखना होगा उनके साथ दूसरे बल्लेबाज जो अभी मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। एक समर्थन देना होगा अपने साथी खिलाड़ी द्वारा, तब जाकर के वो एक बेहतरीन पारी खेल करके एक बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 109 for 4 over number 13. Needless from bat to there. Rizwan is still there. He's unbeaten on 14 of 18 balls. Well, it is a scorching heat here at the center. It's unbearable out here. But these players gone with the game, and look at their fitness level. It's of next level to be precise. But a needless from Dubai Grand, and their batter Umar out to bat. He walks in at number 6. These young lads last time failed, but today they're playing a quality cricket against a quality. Up Narbal, they got Zola in the lineup, they got Uwais Baba, they Rumal Apti, Jahangir Lona, Ishtiaq Rasul Idris, and Mujibul Haq in the valley. And Vaitel is also there. Nasir Kumar is also part of the dynamic and destructive opener. Oh, he will remain on a hat-trick in the next over. He gets his one more here, he gets his man. It's the new man Umarad just walked in and is cleaned it up. It's wicket number 5 down and 2 in no time for Azim here and for team Frandis Motors Narbal. Back-to-back wickets. गेंदबाजी अंतिम 9 पे 5वां विकेट यहां गंवा दिया है दुबई ग्रैंड की टीम ने। 13 पूरे हो चुके हैं, 7 ओवर का खेल बचा है, 42 गेंदें अभी भी शेष हैं और आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं। 5 विकेट अभी भी सुरक्षित हैं। सलीम नए बल्लेबाज आए हैं, रिजवान
बल्लेबाज इससे पूर्व हालांकि शून्य पे आउट हुए, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और इन परिस्थिति में देखना होगा सलीम अब रिजवान के साथ मिलकर किस प्रकार की पारी खेलेंगे, किस प्रकार का समर्थन देंगे। फ्रेंड्स वोटर्स नार्बल की अगर दूसरी और बात करें तो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पारी को समेटा जाए और विकेट प्राप्त किए जाएं। ये एक बेहतरीन और आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन फिलहाल संघर्ष चलता हुआ दुबई ग्रैंड की ओर से। दुबई ग्रैंड 109 5 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर समाप्त हो चुका है। 14वें ओवर की शुरुआत और एक बार फिर गेंदबाजी अदरीस के पास। अदरीस को लगातार उस छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। 2 ओवर में 17 रन। तीसरा ओवर जो है पारी का प्रारंभ करने जा रहे हैं जहां तक उनके कोटे का सवाल है। और कुल मिलाकर दुबई ग्रैंड के लिए पारी की बात करें तो 14वां ओवर होगा। फ्रेंड्स वोटर्स नार्बल की ओर से अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद खाता खोलना 109 5 विकेट के नुकसान पर। 14वें ओवर की शुरुआत और अच्छी खासी धूप, तापमान 34-35 के आसपास और ऐसे में ये मुकाबला चलता हुआ पहली पारी चल रही है तक पहुंच रहा है। ये गेंद पर अच्छी गेंद थी और अंतिम समय में उसको तिरछे बल्ले के साथ, तिरछे आड़े बल्ले के साथ ऑफ साइड की ओर खेला। 1 रन तो पूरा कर लिया। 1 रन के साथ ही रन संख्या में इजाफा। 110 5 विकेट के नुकसान पर 13.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद जेके स्पोर्ट्स टाइमर स्थिति 14वें ओवर में 110 5 विकेट के नुकसान पे अदरीस से समय गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट कीपर वाहिद तेली काफी दूर है स्टंप से। ये देख रहे हैं कि अदरीस के पास अच्छी खासी गति है और वो गति का बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की ओर, वहां पर ओवेस बाबा है, कैच को और गेंद 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का। Good shot and with the tide on driven, Apish and beats the man at long on. He parried it to be precise. He parries it away and that's another 6 here. 116 for 5 in over number 14. This is not the first occasion against Idris Dar we saw that on drive coming into play. Doing this and this time batter again succeed in doing that. It's 116. He does that well in style. Oh, outside edge. Oh, would have been absolute blind, but the ball just popped out of his glove there. Would have been absolute screamer of a catch. Waithele does well, puts in a full length dive, but can't keep that one in his gloves. It just popped out, Nazir. Would have been absolute blind to me. Would have been सर का ये कैच होता अगर इसको लपक लेते। हालांकि गेंद हाथ में आई और उसके बाद आने के बाद छिटकी और निश्चित तौर पर प्रयास बहुत बढ़िया था वहां वाहिद तेली का। 116 5 विकेट के नुकसान पर 13.3 इस बार स्ट्रोक खेला। वहां पर जहांगीर लोन ने प्रयास किया, सफल हुआ। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल आता हुआ इस चौके के साथ रन संख्या 120 5 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 14वां ओवर और अभी भी 2 के 2 का आना बाकी है। धीरे धीरे से अब एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर इस समय दुबई ग्रैंड की टीम में। ये देखते हुए कि फ्रेंड्स वोटर्स नार्बल के बल्लेबाजी उनके जहन में जरूर रहेगी। निःशुल्क तौर पर उसके विरुद्ध एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना होगा यदि इस मुकाबले में दूसरी पारी में कुछ बेहतरीन गेंदबाजी करते और एक खूबसूरत और नार्बल की टीम को। 120 for 5 over number 14. Need a partnership. Salim and Rizwan Sofi. Next one goes across the line, doesn't connect. No connection. Connect is thin air. It's a dot ball. It's a precious dot here. 120 5 विकेट के नुकसान पर और 13.5 ओवर की गेंदबाजी भी है। अंतिम गेंद का आना बाकी। अदरीस गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने 10 पे सलीम नाबाद है। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया और ऐसे में अंतिम गेंद लेकर के दूर वाले छोर से अदरीस चले, सामने होंगे सलीम 10 पे नाबाद। ये गेंद सलीम ने इस गेंद को हल्के हाथों के साथ टैप किया, इसको अलग की और 1 रन पूरा किया। लंबी दौड़ नासिर कुमार की, जब तक वे पहुंचते गेंद को फील्ड करते समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। 2 रन और खाते में जुड़े। अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त हुआ। 14 के बाद दुबई ग्रैंड 122 5 विकेट के नुकसान। 36 balls remaining with 5 wickets in kitty. I think batting side will try to go around 160 180 and still gettable. 10 and over will make it 180 plus, and 11 and over it's going to be then belly for batters, but I think they should try because they're having 5 intact and still 6 overs at their disposal. 36 bowlers. 10 and over is easy in a T20 format nowadays. देखिए 10 रन प्रति ओवर के हिसाब
अंतिम 5 ओवर में अगर आप 60 रन और जोड़ लेंगे तो निश्चित तौर पे 180 185 का लक्ष्य होगा, और अगर 9 रन के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो भी आप 170 175 तक पहुंच सकते हैं। आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, लेकिन यहां से अब उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे दोनों बल्लेबाजों को। They need to rotate strike and believe in singles. When it comes to the hitting the ball, when you feel that it is in your comfort zone, next one pulled away, 2 men converging, will he get to the ball? And Mujib, I think, collision there. Mujib and someone else collided with each other. Both the batters are back for the second. Good running between the wickets. Oh, he's in deep end there. It's Baba, I think. In the field there. He needs some attention of physio there. He's in deep trouble. He is in pan there. He's screaming at the moment. But it's 124 for fine over number 15. We're talking about that they need to keep that scoreboard ticking. They need singles, they need doubles, they need threes at times. In between they need to keep that odd ball out of the center. देखिए निश्चित तौर पे ये जो है इस प्रकार की जो है रणनीति और योजनाएं रहनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों के, क्योंकि अंतिम ओवर्स में अब रन बनाने होंगे, यहाँ से रन गति को उछाल देना होगा, स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देनी होगी। 17 पे नाबाद रिजवान सोफी, 12 पे नाबाद सलीम, 124 5 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ लगातार थोड़ा सा विलंब खेल में, क्योंकि वहां 2 फील्डर मुजीब और ओवैस बाबा समझते आपस में टकराए थे, जिसके चलते थोड़ा सा विलंब हुआ खेल में। और अब जाकर के इस मुकाबले की बात करें, 15वां ओवर पारी का चल रहा है, 124 5 विकेट के नुकसान पे का प्रयास करना होगा। उमर लेफ्टी की अगर हम बात करें, उन्होंने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की, 1 विकेट उन्हें भी मिला। ओवैस बाबा ने कुछ ओवर की गेंदबाजी की, अदरीस डार, जहांगीर लोन ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, इश्तियाक रसूल ने 3 ओवर, और उसके अलावा जो अन्य दीगर गेंदबाजों में अगर गेंदबाजी की बात करें तो करीब 6 गेंदबाजों को, आजिम राथर को आजमाया गया है, 6 गेंदबाजों का अभी तक प्रयोग किया गया है, 5 विकेट मिले, 124। Well, it wasn't Baba, it is Zolo, I think. Look at his body structure, it looks like, with biceps and triceps. Next one, Bekabe. Again, that helicopter shot comes into play up the queue and goes down towards Nasir Kumar. Look at Nasir, imprudence, looking tired out on the field. And he saw the batter looking for the second there. Now decided to go quickly onto the ball. He gets quickly onto the ball after he was watching the 2 batters, how they're doing at the moment. The next one, that's high, that's huge. And that's out of here. What a 6, Sky touching it. It is a Sky. It's a daytime Sky and it's gone over wide mid-on fence. 6 more. 131 5 विकेट के नुकसान पर यह है अब तक का रन लेखा जोखा। इस बार हल्के हाथों के साथ तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी। उस ओर खिलाड़ी थे संभवतः नाग, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया है, 1 रन लेने का अवसर वहां पे दोनों बल्लेबाजों को मिला नहीं। फिलहाल रन संख्या 131 5 विकेट के नुकसान पर, 15वां ओवर, 2 गेंदों का आना बाकी। और ऐसे में आजिम राथर बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, यहां आसानी के साथ कैच मिल सकता है। जी हां, जहांगीर लोन ने एक आसान कैच लपक लिया, एक और विकेट का पतन। सलीम को वापस लौटना पड़ेगा। 8 गेंदों से 18 बनाए, 131 पे 6वां विकेट गवा दिया है। 14.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद दुबई ग्रैंड की टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी का हो रहा था, एक साझेदारी पनप रही थी, लेकिन एकदम एकाग्रता भंग हुई और ऑप्शन से बाहर निकलते हुए गेंद पर बल्ला चलाया। गेंद हवा में रही, जहांगीर लोन ने वहां आसान सा कैच लपका। फिलहाल 6वां विकेट गवा दिया है। रिजवान सोफी नाबाद है 18 पे, 21 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। और देखना होगा यहां से अब उनको हाथ खोलने होंगे, यहां से उन्हें कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, कुछ बेहतरीन विस्फोट करना होगा, कुछ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर के आप उस विशाल लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नए बल्लेबाज मुश्ताक जेडी, एक और दिग्गज खिलाड़ी, हालांकि मुश्ताक जंडा के नाम से लोकप्रिय वो हैं। और ऐसे में देखना होगा, क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभव की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिकेट वो खेल चुके हैं। यहां उन्हें देखना होगा, कश्मीर नाइट्स क्रिकेट क्लब की ओर से वो खेल चुके हैं और काफी समय तक वो उस क्लब का हिस्सा रहे। और निश्चित तौर पर उनके पास वो अनुभव जरूर है, वहां दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलने का वो अनुभव। और यहां जब परिस्थितियां थोड़ी सी गंभीर है, अवसर मिला है और इस अवसर में, इन परिस्थिति में उनको बेहतरीन परफॉर्म करना होगा, बेहतरीन पारी खेलनी होगी, तब जाकर के वो अपनी टीम यानी कि दुबई ग्रैंड को एक बेहतरीन लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। 131 6 विकेट के नुकसान पर 14.5 अंतिम गेंद। और आजिम राथर ने 2.5 ओवर में 29 रन देकर के सबब 3 विकेट चटकाए हैं, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे पहले ओवर में, 2 गेंदों से 2 विकेट। और अब जाकर के
यहाँ से देखना होगा कि वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। काफ़ी दिलचस्प और दर्शनीय देखने लायक ये स्थिति होगी। फिलहाल एक संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता है। आजिम की ये गेंद, उस पर अच्छी गेंद थी, नीचे आती हुई ऑफ स्टंप पर उसको खेला वहां पास में, जब तक जहांगीर लोन आकर के गेंद को फील्ड करने का प्रयास करते हैं। हालांकि असफल प्रयास हुआ, एक रन और खाते में जुड़ा। 132 रन संख्या। इस समय 15 ओवर पूरे हो चुके हैं। 132, 6 विकेट के नुकसान पर दुबई ग्रैंड का स्कोर। 5 overs remaining, 30 balls are gonna come. It's down to Mushtaq Ahmed, Mushtaq JD, and he's got I think it is Faisal Rashid in the middle, out in the middle. But our scorer will surely let us know. It's 132 for 6 after 15 overs. 30 balls remaining, 5 overs are gonna come. After 15 overs with 4 wickets in kitty. It's down to the death overs here. 5 overs. Idris back into the attack again. Captain goes back to Idris. And Idris is the one who can do something special and who can turn the tide sideways. That's why he's brought into the attack. That too in the death. And captain showing belief and promise in this lad. Is he going to live up to his expectations here? It's 132 for 6. Idris begins the fresh over. Comes on to ball. Oh, look at that one, but it's in the air. There is a man settling underneath the ball, Umal Apti, and he takes it in the end. It's wicket number 7 down. Good catch. Not easy one, but he has done that in style there. He reverse cups it in the end and takes it in. With that, it's wicket number 7 down. I think Janda is gone. Without bothering scorers here, without disturbing anyone, gone on one solitary one. It's 133 for 7. 7वां विकेट, और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वहां पे बल्लेबाज मुश्ताक जेडी, और ऐसे में 7वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। 132 कुल योग टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम और कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारबना सोईपुर बड़गाम से। और ऐसे में फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करनी है। क्या लक्ष्य रहेगा दुबई ग्रैंड का? हालांकि 7 विकेट खोए, 132 बने 16वें ओवर में, और अभी भी कुल मिलाकर कहना चाहिए कि 4 ओवर की गेंदबाजी बची है। क्या 160-170 तक पहुंच पाएगी टीम, या फिर उससे नियमित लक्ष्य तक रोकने में सफलता प्राप्त करेगी फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम? 7 down, and it's down to the tail-enders. Are we gonna strikes from the tail-enders or those all-rounders? Because nowadays selectors are using a 3-dimensional aspect to select a side to choose the boys for each and every match, and they use the 3-dimensional formula of batting, bowling, at that fielding prospect, and all 3 aspects are kept in mind, and then selectors are selecting a side. Well, 132 for 7. I remind you once again, we're trying our level best, so bear with us and stay tuned. This match is of great importance. You know, Nag is here, all the big names, you love them, and they're here. Your beloved में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई। 133, 7 विकेट के नुकसान पर इद्रीस गेंदबाजी कर रहे हैं, और 2 बल्लेबाज जो अंतिम प्रयास कर रहे हैं, और अब जाकर के कुछ बड़े स्ट्रोक यहां पर खेलने होंगे दुबई ग्रैंड की टीम को। इस बार फेर कदमों का इस्तेमाल करके आगे जाकर के स्ट्रोक खेलने का प्रयास। ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सर की वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन और 134 16वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर दुबई ग्रैंड, जिन्हें कि आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम के विरुद्ध। शुरुआत बहुत बढ़िया रही आदिल और बिलाल हुसैन द्वारा। हालांकि 51 रनों की वो शुरुआत एक विस्फोटिक साझेदारी रही, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले गए। हालांकि कुछ इक्का दुक्का साझेदारियां भी बीच में देखने को मिली, 10 रन 20 रन की 30 रनों की, जिसके चलते इस अगली गेंद लेकर के तैयारी दृश्य सामने वाले छोर से उनकी ये गेंद, और इस बाहर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। रन संख्या 134, 7 विकेट के। Too much away. He's keeping it simple and tight, and batters are struggling at the moment. Rizwan and his partner Yasir Musa, and last time Yasir picked up 2-3 wickets again as the same opponent in Tangmerg. Oh, look at that one, but there is a field. Will he get to the ball? No, doesn't. Ball falling well short of him. It is Baba there. 1 more run added, but Nazir, one thing was lacking, that was he couldn't middle that one. I think was unable to get to the pitch of the ball. Then it would have been a great shot, it would have been a delightful one, but just away from the body. Can't put in a lot of effort behind that shot. It needed that kind of energy to take it past man, and oh, look at that one, just past the stump is there, and he gets away with that one. And Idris
cheering. And with that, we're done with over number 16. It is 16 done. 135 for 7. 24 balls remaining. 4 overs are going to come. But I think you got to give credit to the bowlers. The way they pull things back here at the fair again. अच्छी वापसी दूसरे सत्र में 10 के बाद यहाँ फ्रेंड्स वाटर्स नारबल की 16 पूरे 135 और कुल रन संख्या इस समय 7 विकेट के नुकसान पर उमर लेफ्टी को दूसरे स्पेल में लेकर के आए हैं कप्तान गेंदबाजी के लिए। वो पारी का 18वां अथवा 17वां ओवर लेकर के तैयार। ये पारी का 17वां ओवर और उमर लेफ्टी है गेंदबाज। सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। 135 पे साथ पहली गेंद उमर की और उस बार उसको लोंगोन की ओर खेला। वहां जोहर जोलो है, फील्ड कर लेंगे सफाई के साथ। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 1 रन और 136 रन 16.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद दुबई ग्रेड और फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। T20 कप दारमोना 2024 वर्ष के अंतर्गत ये प्रतियोगिता और सीधा प्रसारण JK स्पोर्ट्स टाइम और कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। अगली गेंद इस बार बाहरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई। उस और खिलाड़ी है समझते जब तक गेंद को फील्ड किया जाता फैसल कयूम द्वारा 1 रन तो पूरा किया पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और खाते में जोड़े और 2 रनों के साथ 137 17वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे। Over number 17 in progress. 136 for 7 and Faisal Qayyum does well to stop the ball but can't prevent the 2 batters from that brace. Next one hits it in the gap, should hit the boundary. It does. That was brought to you by Just Bukhara. And look at the crowd here using rings, and once more I can use the word rumble and bumble around the center and crowd raptures. And that was a great shot through extra cover and no one was there to stop the ball and bisects that extra cover and long off fielder to perfection. It races away, sped past. 142 for 7. Here is Umar again to Yawar Musa. Top edge, leading edge, goes past wicket keeper. Azim in pursuit, can't get to the ball. Another four. Back-to-back boundaries that were brought to you by Just Bukhara. It's 146 for 7. Timely boundary Nazir, much needed one. बहुत ही बेहतरीन ये पारी खेल रहे हैं अंत में। और अगर अंत तक इसी प्रकार की बल्लेबाजी होती है, पूरे 20 ओवर खेलते हैं तो निश्चित तौर पे ये रन संख्या जो है 160 170 तक पहुंच सकती है। फिलहाल 17वां ओवर उमर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 नाबाद बल्लेबाज। ये बेहतरीन प्रदर्शन अंतिम ओवर्स में चलता हुआ दुबई ग्रैंड की ओर से। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर लपेट कर खेलने का स्ट्रोक वहां पर प्रयास तो किया जरूर था लेकिन सफलता नहीं मिली। गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे। 1 कदम जरूर आगे निकाला था। गेंद की पिच तक पहुंच करके बड़े स्ट्रोक यहाँ पर ऑफर करने होंगे बल्लेबाज को, क्योंकि अंतिम ओवर्स में आपको कुछ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी। इन परिस्थिति में वहां के बल्लेबाज तैयार नहीं थे और वापस लौटना पड़ेगा उमर लेफ्टी को। उमर लेफ्टी 17वां ओवर फ्रेंड्स मोटर नारबल की ओर से। और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध हैं और करीब करीब 34-35 जो कि हम लगातार बात कर रहे हैं डिग्री का तापमान। और ऐसे में ये मुकाबला चलता हुआ पहली पारी 20 ओवर का कोटा 17वां ओवर पारी का चल रहा है। इन परिस्थितियों में 100 और करीब करीब 45 के आसपास रन संख्या। एक बार फिर वहां जगह बनाने का प्रयास किया था, बल्ला जरूर चलाया, संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त। 17 पूरे 3 ओवर का खेल बचा है। Just 18 balls remaining. We're done with the 17th one. 146 for 7. Current rate is I think it's 8.59 in over. This is good power, a good current rate at the moment, but they need to up the tempo because just 3 overs remaining. 18 balls, 10 in over. We'll make it around 180 or more than 10 in over. It's going to be something special for bowlers because they will feel that they got something to bowl at. And let us see, are they going to push it further? And let us find it out. This is over number 18 about to start. West Papa is going back to the top of his bowling mark. He will be bowling to the likes of Yasir Musa on to 11 of 8 balls into the double figures. And Sophie unbeaten on 20 of 24 balls. As Baba comes running in to Sophie. And oh, he walks down the track. Not easy against Baba like customer, but he does well. Look at his determination and look at his resilience. He walks down the track, then plays it back along the track, single accrued. It's 147 for 7. 17 balls remaining. Let's count the number of balls in this over. First ball single, second ball coming up. Musa on strike. He's unbeaten on 11. It's 147. As Baba comes running in to Musa, and Musa backs away, creates a room, but misses the line of ball completely. It was bangered in short. Had high delivery, wide of the off, and he was already backing away. Creates room, but in that process, look at the cleverness of bowler. Cleverly done. He bowled wide of the off,
and keeps his speed and bat swing away from the ball. There was a big gap between bat and the ball. It's a dot ball. 147 for 7. Second ball dot. Here comes ball number 3. Swing and a miss again. Moving outwards, another dot ball. Precious dot ball here like gold dust. लगातार 17वें ओवर में जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हुई इस बाबा द्वारा, क्योंकि डॉट पे खिला रहे हैं बल्लेबाज को, और जितनी आप डॉट गेंदें खेलेंगे दबाव पड़ेगा, क्योंकि अंतिम ओवर्स पे अब आपके पास ज़्यादा उपाय है नहीं। कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने हैं, रन गति को और ज़्यादा गतिशीलता देनी है, स्कोर बोर्ड को और आगे चलाना है, एक बड़े लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कुछ अद्भुत स्ट्रोक खेलने हो गए बल्लेबाजों को। अगली गेंद हुई इस बाबा की, इस बार बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, पीछे खिलाड़ी तैनाक है सबब तैनाक, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, एक रन जरूर मिला, एक रन और खाते में। अच्छा ओवर कटता हुआ जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम का सवाल है। Good over this, brilliant over this, and that too in over number 18. Just gone for 2 runs in this over. All is well that end is well, and that's what matters at the end of the day. And where he's going to finish it. We have too many fields around this very ground. We have 2 other, 1, 2, 3. And too many pitches to be precise. 3 grounds and 3 stadiums and too many pitches. Turfs 148 for 7. Back to the spoiler, but he can't cut it off, and it's Idris who does the more. Oh, it's a no ball. I think there is a signal. Nobody reckoned that. Now he has signaled that it's a no ball. It's going to be Preet coming up. Where is this one going? It's going to be Rizwan on strike. Rizwan will face the Preet. Here he can express himself as we watch Baba again. Pressure on Baba. It's a no ball. Where is no ball going? Baba comes running in to Musa. Oh, look at that. When he was trying to scoop that one, he closed it with face, but of the splice, it goes down to his third man. He was eyeing to go down to the final leg, but it goes down to the third man. One more run added. With that single, it's 150 comes up. 13 balls remaining. This is over number 18. You got to do credit to bowler here. Yes, bowled quality over here. Even no ball, he gets away with that one here. It's just 150 on the board. Apish, there is a fielder. Will he take that? Oh, does well. He plucks that one from thin air. Wicket number 8 down, and Baba does well. Excellent over this. After 18, it's 150 for 8. 150, 18 पूरे 2 ओवर का खेल बचा, निर्धारित 12 गेंदें, 2 विकेट आपके पास सुरक्षित। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी ओवैस बाबा की। बहुत ही बढ़िया ओवर रहा, रन गति पे अंकुश लगाया, और उसके बाद कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे बल्लेबाज। फिलहाल 8 विकेट खोए हैं, 2 अंतिम ओवर का खेल बचा है। 20 ओवर की पारी, 18 पूरे हो चुके हैं, 150 रन बना लिए हैं। एक अच्छा लक्ष्य कहना चाहिए इस विकेट पे। लेकिन ये देखते हुए अगर बल्लेबाजी की बात करें तो फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के पास जहां नाग और नासिर कुमार, उसके बाद जहांगीर लोन, उसके बाद वाहिद तेली, मुजीबुल हक, उमर लेफ्टी, और उनके साथ साथ जो अन्य बल्लेबाज हैं, एक से बढ़कर एक बल्लेबाजी उनके पास है। तो फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि 200 रन भी इस विकेट पे कम पड़ जाएंगे। लेकिन क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। एक अच्छी शुरुआत देनी होगी गेंदबाजों को, शुरुआत में विकेट चटकाने होंगे, तब जाकर के आप बड़े से बड़ा लक्ष्य है या फिर छोटे से छोटा लक्ष्य है उसको भी डिफेंड कर सकते हैं। फिलहाल 18 पूरे, और 18 के बाद 150 बने, 8 विकेट खोए। नए बल्लेबाज इस समय मैदान की ओर जा रहे हैं। हालांकि आदिल बॉर्डर ने कुछ बातचीत उनसे की कि 20 ओवर पूरे खेलिए, ये 2 ओवर की बल्लेबाजी और कीजिए, 10-20 रन और जोड़ लीजिए और आप 160-170 के आसपास पहुंच सकते हैं। फिलहाल 19वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है और उमर लेफ्टी के हाथ में गेंद होगी। उनका अंतिम ओवर होगा कोटे का, पारी का 19वां ओवर। 150 दुबई ग्रैंड टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता हुआ फ्रेंड्स मोटर नारबल के विरुद्ध। डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना, सोईबुक बडगाम, जहां से ये सीधा प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम और कश्मीर स्पोर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। धन्यवाद सभी श्रोताओं का, अपने स्पॉन्सर्स का हमारे साथ समर्थन सहयोग देने के लिए। और इन परिस्थितियों में आखिरी 2 ओवर का खेल जो कि लगातार हम आप तक बॉल बाय बॉल कमेंट्री पहुंचा रहे हैं। उमर लेफ्टी पारी का 19वां ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पहली गेंद होगी और अंतिम 2 ओवर में 2 विकेट आपको चटकाने हैं, लेकिन बल्लेबाजों को कुछ रन बटोरने का प्रयास करना होगा। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, हालांकि को चाल ऑफ स्टंप पर खेलने का प्रयास किया लेकिन नहीं पहुंचे, संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। 18.1, 150, 8 विकेट के नुकसान पे। 11 balls remaining. Umar Lefty is going to finish his score at 3.1, 1 for 22. Economic, brilliant spell this, tight spell this, and this is Umar Lefty for you. What a cricketer, nice all-rounder.
He's bowling in over number 19. Penultimate continues. Ball number 2. Helicopter shot comes into play. Works it away onto the onside. Call is for 2. And look at field. He shies it in. It's Mujibul Haq, the local lad. He's from Budgam. One more run added. And with that single, it's 152 for 8. Over number 19 in progress. Umar continues to bowl. Umar is keeping it simple and tight. But let us see. Is Abbas gonna break free? Is he gonna break free? As Umar comes again. Oh, look at that one. And both the batters scamper through quickly. Running between the wickets. Before White can come in and stop the ball. Another run added. 152 for 8. 152 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर। गेंदबाजी उमर लेफ्टी के पास और क्या लक्ष्य रहेगा यहाँ से दूसरी पारी में जब फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम बल्लेबाजी करेगी। फिलहाल 19वां ओवर चल रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कुछ रन बटोरे जाए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, चतुराई भरा स्ट्रोक, इन सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। Represents a mind, beautiful shot, improvisation, and improvises on that occasion. And look at that clever shot, Nazir. Rizwan Sofi does well. Exposed, it is all the 3 stumps. It's this is called the improvisation, and we call it evolution in the game. And look at that one. Knowing that everyone is on his toes, he used this area which is vacant, to be precise. No one feeling in this area. 4 रन और खूबसूरत स्ट्रोक था और मानसिकता यहाँ पे संतुलित होते हुए अपने स्ट्रोक को वहाँ पर उस क्षेत्र में खेला जहाँ पर खिलाड़ी तैनात नहीं थे। चौका बटोरा, अगली गेंद उमर की। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने गए, संपर्क नहीं हुआ। अतिरिक्त उछाल था गेंद में, सीधे विकेट की वाहिद तेली के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 19वां ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में अब देखना होगा यहाँ इन अंतिम गेंदों में 6-7 गेंदें बची हैं तो कितने रन बटोरे जाएंगे। कुछ प्रयास जरूर होगा, कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ दुबई ग्रैंड के बल्लेबाज उमर लेफ्टी, अगली गेंद और इस बार फिर खेलने का प्रयास किया था। वहां पर किनारा छूती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में लपक लिया, विकेट मिला और ऐसे में 9वां विकेट। 19 पूरे दुबई ग्रैंड। 19 done after 19, 9 down. It's 156 on the board. Nicely held by Whitele this time. Ajishwan, and it goes straight into the gloves. Whitele does well, holding on to the ball. And this broadcast is brought to you by JK Sports in collaboration with Anthem Sports in the Fashion Feast, Shining Star Power MH multi-brand by Rafivani, Green Lions Cricket Club, Delgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, HND complete kits wear in Natipura, Srinagar. And coming back to this all-important match, it's 150 plus for the loss of 9. अंतिम ओवर पारी का 156, 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी, आखिरी ओवर और अंतिम प्रयास बल्लेबाजों का होगा क्योंकि आखिरी 6 गेंदों का आना बाकी है और बची हुई 6 गेंदों से ज़्यादा रन बटोरने का प्रयास होगा दुबई ग्रैंड का। 156 तक पहुंच चुके हैं और अगर यहां से 10-12 रन और जोड़ लेते हैं तो 170 तक पहुंच सकती है टीम क्योंकि 156 फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के विरुद्ध स्कोरबोर्ड पे खड़ा कर दिया है दुबई ग्रैंड की टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डिजिटल स्पोर्ट्स स्टेडियम दारमुना सहबुग बडगाम, जहां से ये सीधा पसंद खूबसूरत मैदान और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब दृश्य इस मैदान के, आकर्षक ये मैदान। और ऐसे में T20 चैंपियनशिप दारमुना इस मैदान पे खेली जा रही है। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद इस पापा की, वहां नो का इशारा, एक बार फिर रन यहां पर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। दुबई ग्रैंड 157 अंतिम ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे। He have a stopper, it's a no ball. He's having issues with his front foot landing and he committed such mistakes. It's a silly mistake to me. You should avoid these things. You should work on the basics, going back to the nets, and should understand where to land and how to land. It's important. He have a stopper again, just outside the crease there, called as a no ball. Freed coming up, 157, and bang it in short. He goes leg side and wanted to heave it over long on and beaten on that occasion. It's a dot ball, it's bang it in short, can't bang it away. Look at his figures, 3.1, 1 for 22. Pacers doing really nice here. Pacers doing their homework very well. And it's over number 20 in progress, 157 for 9. As Baba continues to bowl, Idris warming up a bit. This is over number 20, last over. Ball number 2. First one, it was a no ball. Second one, dot. Third ball coming up, 157 for 9. Back away and is beaten on that occasion. It's again a no ball. What's going on, Baba? And Baba is clueless there. He can't understand. Another Frit coming up.
अब तक उनके 4 ओवर में 4 नो बॉल्स आ चुके हैं, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका जो नियंत्रण है वो खो बैठते हैं जब वो गेंदबाजी करते हैं, और ऐसे में इस चीज़ पे कार्य करना होगा बाबा को। फिलहाल एक और नो बॉल यहाँ पे अंपायर द्वारा, और इस फ्री हिट का लाभ लेना चाहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि अंतिम ओवर चल रहा है, ये पहली पारी समाप्त होने जा रही है। कुछ गेंदें बची जरूर हैं, लेकिन कुछ बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास इस समय बल्लेबाजों का, आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। और इन परिस्थिति में अगली गेंद ओवेस बाबा, हालांकि अच्छी खासी रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, उनके पास गति तो है, लेकिन उस गति का सही दिशा और लंबाई के साथ प्रयोग करना होगा ये गेंद। और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाए, फ्री हिट का लाभ नहीं ले पाए इस ओवर में अभी तक। और अच्छी गेंदबाजी, हालांकि अगर नो बॉल से कदी वाकत को छोड़ दें तो गेंदबाजी बहुत ज्यादा, रन उन्होंने खर्चे नहीं है, बल्लेबाजों को अवसर दिया नहीं है रन बटोरने का। Just 23 of his is in his fourth over, but he bowled too many no balls today. Out of 23, 4 or 5 no balls. And he's trying to replicate what Shoaib used to do, and we'll have to wait and watch. It's 1-5 for 9 as Baba continues to bowl over number 20. 2 dots and 2 no balls, and it's again a dot delivery. It's a precious dot again, goes across the line, deep in crease, no connection again, connect is thin air, and this isn't good from bat here. There is nothing to lose, everything to achieve. Just go after the bowlers, just go after Baba here. Dar Abbas, he used 6 balls and is on to 1. And look at the funny comment passed on by someone here in the dugout, and someone talking to batter and conveying a message passed on to Kamal Nazir, telling him take time, I think time is over. Just 3 balls remaining. Here is Baba again, back to the top of his bowling mark, comes running in to Dar Abbas, and Abbas is in mood here. Oh, that's high up in the air. Is he going to get to the ball? Will he get to it? Oh, doesn't. In the end, it falling well short of him, but now does well to stop the ball. He drags it back into the play, but not before the 2 batters crossed over a brace. It's 160 on the board for the loss of 9. और इस प्रकार से अब 159 तक पहुंच चुकी है टीम। अंतिम ओवर पहली पारी का, अरे इन परिस्थितियों में 160, क्षमा कीजिएगा 160 पे 9, और यहाँ 2 गेंदों का आना बाकी, 19.4 ओवर की गेंदबाजी, 160 9 विकेट के नुकसान पर अंतिम 2 गेंदों का आना बाकी। क्या कुछ 2 बड़े स्ट्रोक देखने को मिलेंगे? क्या यहाँ से कुछ विस्फोटक अंदाज की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? क्या यहाँ सिंगल डॉट से निर्भर रहेंगे? क्या यहाँ विकेट मिलेगा? सभी निर्णय यहाँ पर उपस्थित होंगे। फिलहाल बाबा 5वीं गेंद लेकर अंतिम ओवर की 160 9 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, फिर बल्ले का प्रयोग, दौड़ करके रन तो पूरा कर लिया, थ्रो गया वहां पर, स्टंप्स पे नहीं लगा, 1 रन जरूर, 1 रन आसानी के साथ जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही रन संख्या 161 9 विकेट के नुकसान पर पहली बारी और अंतिम गेंद लेकर के तैयार हुए इस बाबा। Well begin is Hopton Nazir, you have to accept that. Well begin is Hopton. It's 161 for 9 now after 19.5 balls. And if we talk of that power play, and they were 51, and after 6 overs to be precise, they were 55 for 2. And it's where things changed, but they set the tone for a big score. Now they have runs on the board, 160 isn't bad. Here is Baba again, last ball, and hits that one, but up the inner edge, it goes down to the spine leg. He's coming back for the second, chance of a run out, gone bagging. Are they gonna go back for the third one? Oh, he slept there, and he's going back to the safety of crease. 2 more runs, and 163 is where they sign it off. 164 will be the target for Nag and company. We'll be back shortly with the chase.